Welcome back and a very good afternoon to all of you to the second topic for today that is being once again given by our resource person Anand sir. As you know that as the in-house training is in progress, so I heartily congratulate each and every one of you for being or coming to this wonderful training. As time is passing, we are near our completion of the topic, and with this we all are gaining a lot also. So these trainings are very much required as guided by the CBC, and it also enhances the ability of teaching. Some of them are late, but I feel that most of the seats will be full within few minutes. And with this, I say that the topic for today is teaching and learning style. As the topic says, teaching and learning style, teaching and learning is also a kind of art, and everyone does not have full or accurate success in teaching anything. So to teach a person to be in a better way or in a better position, one should have the best things with them. So teaching and learning style or is the art which is something, the ability which only comes when you show your passion, your capability, your things. Okay, so with this I say you to just be concentrated, as the Anand sir is coming to be on batch. Sir, the lights are not working, so please switch to it. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. इसके बाद अब मैं बुलाना चाहूँगा एक बार फिर से हमारे प्रिय आनंद सर को, वो आए और आकर के इस टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल के बारे में आप सभी को, हम सभी को थोड़ा सा कुछ आइडियाज दें. Respected director sir, principal ma'am, and dear all teachers. Today myself Anand Prakash, TGT IT 402. Here I am discussing or telling or about topic teaching and learning style. Teaching and learning style. टीचिंग मतलब किसी को कुछ आप बता रहे हैं, उसी को आप शिक्षा दे रहे हैं, एंड लर्निंग स्टाइल मतलब लर्निंग मतलब कुछ सीख रहे हैं, तो कुछ बताने की और कुछ जानने की जो कला है, दैट इज कॉल्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल. अब आ जाती है बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल. क्या होते हैं टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल? कह सकते हैं टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल इज अ थ्योरी. वो एक क्या थ्योरी है? दैट स्टूडेंट्स लर्न, जो विद्यार्थी जो कोई भी सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं, एंड स्टडी और पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते
that people have unique approach, जिसमें लोगों का अपना एक यूनिक अप्रोच है। कोई पीरियोडिक टेबल को याद करता अपने तरीके से, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सीधा याद करता है जैसा बताया, हेलिना कार्बोहाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम ली, उसके पीछे हेलिना, उसके पीछे सोडियम, फिर सकने लगी, फिर से वो एक पैटर्न बना देता है। A learning style is a person's preferred method of gathering something or knowledge. Learning style क्या है? Learning style is a person preferred. ये जो यहाँ पे देखेंगे एक सीरीज है, लीना कड़प से सकने लगी, फिर से ये पीरियोडिक टेबल का बात है, ये एक पर्सन का, किसी खास पर्सन का, ठीक है, अपने याद करने का तरीका है। If you are teacher, यदि आप टीचर हैं तो आपको हर चीज को आसान आसान करके बताना पड़ेगा। अगर आप टीचर हैं, आपको बच्चे को अपने जिस स्टाइल से आपने किसी भी चीज को आसानी कर सकते हैं उतना आपको बताना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड बेसिक टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल। अब टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल में बेसिकली फोकस करते हैं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सम पॉइंट्स that should be kept in our mind. That is role of teacher, that is role of student, that is interaction between teacher and student, that is vocabulary teaching, that is grammar teaching. आप पढ़ा रहे हैं, मायने नहीं रखता आप साइंस के टीचर हैं। If you are reading in English और हिंदी तो आप एक सेंटेंस को अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पे बच्चे को बताना पड़ेगा कि सेंटेंस को पढ़ के समझो कि कहां पर एस लगा हुआ है, कौन सा कोलोडल है, कौन सा सिमिलर है, कहां पे आर्टिकल यूज हुआ, यहां पर ए यूज हुआ तो क्यों यूज हुआ, यहां पे एन यूज हुआ क्यों यूज हुआ। इवन दिस इज टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल। पढ़ने और समझने का, जो कहते हैं पढ़ने और पढ़ाने का एक स्टाइल है, कुछ सिखाने का और कुछ सीखने का एक कला है। You are a teacher, you are a motivator, you are a catalyst. और अगर आप अपने बच्चे को किसी भी चीज को आसान करके बताते हैं जो उसके लिए फायदेमंद है, means that it is your unique methodology, unique techniques. During teaching and learning, you should to apply some techniques. Some techniques that we should to use, that we should to apply during teaching and learning, means transition of literary passages. ये जो पैसेज लिखा हुआ है, जो भी कुछ उसको किसी को बताना है या समझना है, कैसे बता रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। You should to use question and answer exercises. If I am geography teacher, then first question is earth is round or what shape of earth? So some say spherical in shape, but radius of earth is different. ये बताना पड़ेगा बच्चा का कि रेडियस अलग है, तब वो क्यूरियस, तब वो जान पाएंगे कि अर्थ के सेंटर से अगर नॉर्थ पोल का बात करते हैं तो इतना दूरी है और इक्वेटर का बात करते हैं तो इतना दूरी है। पृथ्वी गोल है बता रहे हैं, पृथ्वी गोल है, बच्चा भी समझ रहा है पृथ्वी गोल है, वही बच्चा आगे जाके पढ़ता है कि नहीं नहीं रेडियस अलग है 9th क्लास में जाके, तो बच्चा कहता नहीं टीचर ने गलत बताया। तो अगर if you are using something different in your during teaching and learning process, then your child, your children, your people able to understand your words easily. During teaching and learning, you should to use conversation practices, जिसे मॉडर्न वर्ड में कहा जाता है डिबेट, मतलब वाद विवाद।
कहते हैं व्हाट इज साइंस, तो जो भी हमारे आसपास कुछ हो रही है सब साइंस है। तो उससे रिलेटेड कि पेड़ में भी फूल आ गई है, अब इसमें फल आएगा, क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। तो ये सब वर्ड, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मींस दैट कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू शुड टू अप्लाई कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्लासेस। देन सबसे बड़ा बात होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रहता है, तो डायलॉग मेमोराइजेशन, साइंटिस्ट ने क्या कहा था उससे याद हो जाएगा। इफ यू आर इंग्लिश टीचर, you should to use grammar games, use of articles, use of prepositions, use of verbs, use of adverbs, different types of sentence, exclamatory sentence, interrogative sentence, negative sentence, affirmative sentence. The primary skills to inherit different teaching and learning style, you should to develop your listening and speaking skills. अगर आप टीचिंग और लर्निंग को एक बेटर तरीके से आप बताना चाहते हैं, आप एक अच्छा स्टाइल से बताना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं, एक अच्छे ढंग से बताना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारे बच्चे सेटिस्फाइड रहें, जितने क्लासरूम में जितने बच्चे सब प्रॉपर्ली समझे, प्रॉपर्ली जवाब दे, मींस दैट प्राइमरी गोल योर शुड बी to enhance them in their communication skills. उसके communication skills को enhance कीजिए, उसका listening power बढ़ाइए, अपना listening power बढ़ाइए, अपना speaking power बताइए। अगर कोई टीचर है क्लासरूम में धीरे बोल रहे हैं, this is not their style, his or her style, उस टीचर का ये स्टाइल नहीं होना चाहिए। Your voice should be clear, means that this is a speaking skills. Teachers should to use proper communication skill in their classes. कि टीचर को उपयोग करना पड़ेगा, सही ढंग से communication skill को यूज करना पड़ेगा। If your listening and speaking skill will improve, then your reading and writing skills also be improved. अगर आपका सुनने का और बोलने का स्किल बढ़ेगा, तब जाके आपका लिखने का भी स्किल बढ़ेगा। बच्चा पहले बोलना सीखता है, लिखना नहीं सीखता है। तो टीचर को चाहिए क्लासरूम में जाए तो कोई स्पेलिंग अगर लिखवा रहे तो सही ढंग से प्रोनाउंस करके लिखवाए। आप बच्चे को बोल रहे सर्कल लिखो, बच्चा लिख रहा है CRKL, नहीं, उसको स्पेलिंग भी वहां पे आप कर दीजिए CIRCLE, सर्कल। बच्चे को दो बार रखवाइए CIRCLE, सर्कल, बच्चे को याद रहेंगे। If you are feeling or imbalanced during classes, means that you should to tell your error. This is natural outcomes. ये क्या है, natural outcomes है। एक गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक कैसे बन सकता है? अच्छा शिक्षक बनने के लिए भी कुछ क्वालिटी होती है जो ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को मिलती है।
सम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन जिसको हॉट क्वेश्चन भी कहा जाता है, सम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, and you should to give them idea how to relate this question with their knowledge. आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने नॉलेज से कैसे देंगे। You should to say them, आपको बताना पड़ेगा। Teaching and learning style is a skill that should be inherited by all teachers, all educators, all motivators, all students, or those person who regarding itself with this education field. ये कोई बात नहीं है कि टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल हम सिर्फ स्कूल में ही अपना सकते हैं। Every day, everywhere, in every situations, if your teaching and learning style is proper, then you able to satisfy, you able to resolve query, problem, needs of people. अब बात होती है यहाँ पे व्हाट्स योर टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल, आपका क्या स्टाइल है। कोई होते हैं उसी टॉपिक को 1 मिनट में अच्छे से समझा देते हैं, मीन्स दैट कुछ होते हैं उसी टॉपिक को देर से समझाते हैं, मीन्स दैट तो जो उस टॉपिक को अच्छे से समझा देते हैं और शॉर्ट टाइम में समझाते हैं, मीन्स दैट देयर टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल इज गुड। और अगर कोई डिस्कस करने के बाद बहुत कुछ कहने के बाद भी नहीं समझा पाते हैं, मीन्स देयर एनी लैक इन देयर टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स। मैं भी फेस करता हूँ प्रॉब्लम बहुत सारे। बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे को कहा जाता है कि बाबू की जिज्ञासु रहो, क्यूरियस रहो। एक स्टूडेंट और क्यूरियस, अगर विद्यार्थी जिज्ञासु है, देन टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट शुड टू अडॉप्ट डिफरेंट टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स to enhance their memory, कहा जाता है कि बच्चा जब एडोलेसेंस के टाइम में होता है, यू शुड टू ब्रेन बॉम्बिंग। आपको क्या करना चाहिए? बच्चे के दिमाग में ब्रेन बॉम्बिंग करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स, कि अगर बच्चे के दिमाग पे आप ब्रेन बॉम्बिंग कर रहे हैं, बच्चे का दिमाग क्या होगा? विकसित होगा, विकास होगा। एंड they able to think something broadly, किसी भी चीज को वो ब्रॉडली मतलब विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। आज साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, शुरुआत हुआ था 5000 BC पहले। अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो महर्षि कर्नाड ने एटम का डिस्कवरी किया। ही वॉज इंडियन फिलोसफर। फिर उसके बाद अराउंड 2000 BC डेमेट्री आया, सॉरी 2500 BC, जब इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होने को था। डेमेट्री मैट्रिक्स आया, बोले क्या? छोटा सा पार्टिकल जिसको पदार्थ एटम कहा गया, सॉरी परमाणु कहा गया था कर्नाड के द्वारा, महर्षि कर्नाड। उनको उन्होंने बोला एटम। सबसे पहले डेमेट्रियस यही ना कहा था कि एटम नाम दिया था डेमेट्रियस। ये बच्चे को बताना पड़ेगा। दिस इज डिफरेंट टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल।
21st सेंचुरी से मिड 21st सेंचुरी में इंटर कर रहे हैं हम लोग। मैकेनिकल एज है। If we are not adopting different teaching and learning style, so to satisfy each and every children's need or to satisfy their curiosity, then how can we imagine future generation? Each and every student of our classroom are future of our nation, future of our science and technology, future of our arm skill, future of our country, future of our nation. And we also to implement them with a unique teaching and learning styles. How can we understand science? How can we understand physics? How can we understand social study? How can we understand geography? How can we read and write English easily? How can we read and write Hindi easily? Basically, simply, I will say teaching and learning style is a method that we used in a classroom we should to use different techniques in our learning process, in our teaching process. अगर आप ज्योग्राफी का टीचर हैं, if you are teaching about geography, then you should to use map, globe, model of an earth. Some different. If you are a history teacher, then you should to use historical data, timelines. Chart paper. If you are chemistry teacher, you should to use periodic table, different chemical. If you are math teacher, you should to use different techniques, different parameter to measure something, SI unit, CI unit. CI कमर्शियल यूनिट, SI साइंटिफिक आइडियल यूनिट जिसे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। बेसिक फॉर्मूलास। If you are English teacher, when you are writing or reading, मैं बेसिकली ये इंग्लिश के टीचर के लिए नहीं कहूँगा। टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल in a classroom. Teaching and learning style means that it is an ability to deliver, to satisfy the query of your student successfully. अगर आप किसी को अगर कुछ बता रहे हैं, आप किसी को अगर कुछ समझा रहे हैं, आप अपने क्लासरूम में हैं, तो कहा जाता है these are teaching and learning style you should to implement in your daily life. कुछ पॉइंट की मैं बात करूंगा जिस पे हम सबको फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, what should be role of a teacher during teaching and learning? There are some basic rules that can be adopted by teachers during teaching and learning. Means that we can say that teachers should be
ग्रामर्स। अगर हम बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल, टीचर टीचिंग एंड स्टूडेंट वेर लर्निंग, कुछ रोल होते हैं जो स्टूडेंट के भी रोल होते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, students should be active listener, active learners. Students should be active learners, active listeners and active speakers. Same as teachers should be also. Their proper interaction between a student and teacher should be necessary. While a teacher teaching in their classes, in their classroom, teaching and learning style means that it is teaching and learning style is a process, is an activity that used by a teacher, students in their classes. You should to ask them, you should to motivate them how they able to learn, how to able to understand their subject. और मैं बात कर रहा था कि टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल में यहाँ पे कुछ रोल टीचर के होते हैं तो कुछ रोल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। एक प्रॉपर टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल डेवलप होना चाहिए जहाँ पे बच्चे 100% उनको पता चले कि क्या वो पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन आंसर की वक्त आए और बच्चे को मैंने बोला क्या कि आप आंसर करो, और इसमें अगर एक दो पॉइंट उनको बोल दूंगा कि अगर वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं मींस दैट देयर सेंटेंस जो रहेंगे, जो भी सेंटेंस रहेंगे वो पास्ट रहेंगे सेंटेंस। कॉमन एरर होते हैं 6, 7, 5 के बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उनको पता नहीं होता, वो उतना कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि इज लगाए, वाज लगाए, एम लगाए, आर लगाए, क्या लगाए। और अगर आप साइंस के टीचर हैं, सोशल साइंस के टीचर हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, मींस दैट आप सेंटेंस को पढ़ के बच्चों को बताएं कि यहाँ पे ये यूज हुआ है और ये प्लुरल है, एक से ज्यादा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। यू शुड टू से देम and their uses. Basically, teaching and learning style means that it is an ability. It is an ability that can be inherited by any person, but they should be
roles defined for teachers, defined for students. मैं बेसिक रोल एक बता सकता हूं कि टीचर के लिए जो एक रोल है, ऑलवेज सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी ऑफ योर स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी का जिज्ञासा को हमेशा संतुष्टि करें। मैं एक बार गया था, मैं क्लास कर रहा था कहीं पे, और वहां पर भी टीचिंग और लर्निंग हो ही रही थी। अब बात चल रही थी, वहां पे कुछ अलग टॉपिक चल रही थी, और उस टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन अराइज किया। तो क्वेश्चन मैंने अराइज किया, जब तक मैं एक्टिव लिसनर नहीं रहूंगा तब तक मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। बच्चा जब शुरुआत होता है, कोई बच्चा जब उसको अलग अलग कहा जाता है कि प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर होता है एडल्टहुड। एज बच्चा का बढ़ते जाता है, और शुरुआत में बच्चा किस चीज से अनुभव करता है? तो सेंस से सुनता है, समझता है, तब जाके बच्चा बोलता है, फिर जाके वो क्या करता है? लिखता है। If you are going to your classroom, you should to prepare some question. आपको उससे पूछना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन, आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे। अब ऐसा नहीं क्लासरूम में गए, बच्चे को 5 क्वेश्चन दे दिए, बच्चा उसके बारे में जान ही नहीं रहा। उस क्वेश्चन के बारे में उसको रिफ्रेशमेंट कीजिए, उसको समझाइए, थोड़ा बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग दीजिए कि क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन किस से पूछ रहा हूं। देन दे विल ट्राई टू राइट आंसर, और जब वो आंसर लिख दिए, उसका कॉपी आप चेक कर रहे हैं, तो एक एक एरर दिखाया कि बाबू ये अगर सेंटेंस और ये वर्ड अगर प्लूरल है तो यहाँ पे एस लगेगा, एस लगेगा। मैंने क्या बताया कि आप हिस्ट्री के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, लेकिन कॉमन अगर ग्रामर को भी आप बता रहे हैं, उसमें वोकैबुलरी भी बता रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सिलेबस भी दे रहे हैं। These are basic role that can be used or inherited by teacher or student during teaching and learning. अगर एक बच्चा को ये पता हो जाएगा कि सेंटेंस लिख रहा है, और वो सेंटेंस कैसा लिख रहा है, कौन सा टेंस में लिख रहा है, सेंटेंस का क्या मोटो है, तो वो सेंटेंस सही से लिखेगा। तो सबसे फर्स्ट होता है ना कि टीचिंग एंड लर्निंग का बेसिक जो है, एक्टिव स्पीकर एंड एक्टिव लिसनर। योर स्टूडेंट शुड बी एक्टिव लिसनर एंड एक्टिव स्पीकर, एंड यू शुड बी ऑल्सो, आपको भी होना चाहिए क्या? एक्टिव लिसनर एंड एक्टिव स्पीकर। और जब एक्टिव स्पीकर और एक्टिव लिसनर आप हो, तो बीच में एक होती है जिसको कहते हैं फीडबैक। फीडबैक मीन्स ओपिनियन, कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है उसको या नहीं आ रहा है, वो जो पढ़ा उससे उसको कुछ समझा या नहीं समझा। तो ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग ये स्टाइल सब कुछ स्टाइल्स है, कुछ आपका एटीट्यूड है जो आपको क्या करनी पड़ेगी? एडॉप्ट करनी पड़ेगी। और मैं शुरुआत में ही बता रहा था कि मैं एक बार गया तो केमिस्ट्री का क्लास में, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये याद करते रहो, 118 एलिमेंट का नाम। लेकिन मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताया, बोले कि इस साइड से पढ़ो, हेली ना कर, अब से सकने लगे फिर से, ऐसा ऐसा वो ट्रिक दिए। मीन्स दैट वो उनका क्या था? टीचिंग स्टाइल था, उनका वो लर्निंग स्टाइल था। पहले आदमी लर्निंग देन टीचिंग, पहले कुछ सीखने का होना चाहिए कैपेसिटी, तब जाके आप कुछ सिखा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू लर्न, देन यू शुड टू अप्लाई इट। मैं भी जाता हूँ क्लास में बहुत सारे ट्रिक कि बचपन में पढ़े क्लास 4 में कि पृथ्वी गोल है, और जब क्लास 9 में आया तो पता चला क्या कि रेडियस उसका अलग अलग है। मीन्स दैट कि आप बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो आपका टीचिंग और लर्निंग स्टाइल कैसा है वो डिपेंड करता है। और अगर आपका क्लासरूम में जा रहे हैं, आप सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चे को
में टीजीटी, एसएसटी सोशल साइंस अरुण सर को बुलाएंगे और कुछ अपना विचार रखें इस आज के टॉपिक पे, सीखने और समझाने का कला इस पे। धन्यवाद आनंद सर। जैसा कि आज का जो मुख्य मुद्दा है या आज का जो टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल, जहां तक कि सबसे प्रथम चीज है कि हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक का एक दायित्व होता है, शिक्षक का एक भाव होता है। शिक्षक का कार्य है ज्ञान का प्रसार प्रचार करना, और चूंकि यदि आप इस जो आज का टॉपिक से उसमें दक्ष नहीं होते हैं तो आप सही शिक्षक बनने योग्य नहीं है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम कि आप शिक्षक की सार्थकता को सिद्ध करें। दूसरी बात है, मैं इसी चीज पर मुख्यतः जो आज का जो टॉपिक है उस पर जो मुख्य जो है शिक्षकों की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका किसी भी ज्ञान की प्रसार में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे आप जानते होंगे कि शिक्षक जिस प्रकार मिट्टी को एक नया स्वरूप देकर बर्तन के रूप में परिणित करने का कार्य कुम्हार का होता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने बच्चों के अंदर गुणों को निकालकर और एक नया और एक प्रशस्त जीवन की तरफ अग्रसर करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप पढ़ाने जाते हैं तो आपकी एक ऐसी स्टाइल होनी चाहिए, आपकी एक ऐसी कला होनी चाहिए, आपके हर भाव में एक ऐसी भाव होनी चाहिए जिससे देखकर बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाए। सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो प्रथम आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि कक्षा का वातावरण कैसा है, कक्षा के वातावरण पढ़ने योग्य है या नहीं है। तो कक्षा का वातावरण को पढ़ने योग्य बनाना प्रथम शिक्षक का दायित्व होता है। दूसरी बात होती है कि कक्षा में जाने के पश्चात बच्चों के हाव भाव को अवगत करना, बच्चों के हाव भाव को अवगत करें और अवगत करने के पश्चात आप जो टॉपिक्स है कोई ऐसा जो आप पढ़ाने के जो चैप्टर विशेष जाते हैं तो उस चैप्टर को अवलोकन करें और उस चैप्टर विशेष पर आधारित कुछ ऐसी प्रेरक बातें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिससे कि बच्चा उसके प्रति ज्यादा अपने अंदर में भरता है। यदि उन सभी चीजों को यदि आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उस कक्षा का माहौल जो है खुशनुमा होगा, और जब खुशनुमा होगा तो आपकी टीचिंग का प्रति, आपके ज्ञान प्रचार करने का जो प्रति होगा वह ज्यादा काम लायक होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक कक्षा के भाव को समझे। अब होता है बच्चों के समग्र विकास हेतु बच्चों को, हर एक बच्चों को आकलन करना। आकलन होता क्या है कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत विद्वान होते हैं, कुछ जो होते हैं वह बहुत कमजोर होते हैं। तो हमारा कार्य है कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलना। तो साथ लेकर चलने के लिए यदि मान लिया कि कोई टॉपिक्स है तो उस टॉपिक रिलेटेड या उस टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसी व्याख्यान करना, कुछ ऐसी मनोरंजक कथा सुनाना, कुछ ऐसी मनोरंजक बातें रखना जिससे कि बच्चे की रुचि जो है वह हमारी शिक्षा पद्धति की तरफ अग्रसरित हो जाए। अब होता है कि कक्षा के माहौल को खुशनुमा करना, कक्षा के माहौल को खुशनुमा करना यह आपका प्रथम दायित्व होता है शिक्षा को प्रसार करते हैं। अब यदि जब आप किसी चीज को पढ़ाते, कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे माने उस चीज से रिलेटेड जो है वह माने सामग्री होता है। यदि आप उस सामग्री के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि आप क्रियात्मक कार्य के द्वारा बच्चों के अंदर में यदि आप भाव को रखेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ज्ञान का प्रसार जो है वह सही ढंग से होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों के आकलन करना शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व होता है। यदि आप आकलन कर लेते किस बच्चे में किस तरह की कमियां हैं, कहाँ कौन जो बच्चा का बौद्धिक विकास सही ढंग से नहीं होता है, तो उसका आकलन करके आकलन रिपोर्ट तैयार करें और इसके पश्चात जो है वह उसके अभिभावक के सामने बैठकर उस आकलन रिपोर्ट को उसके अभिभावक के पास रखे और अभिभावक के पास रखने के पश्चात यदि आप उनकी वक्तव्य को रखेंगे, उस बच्चे की समग्र विकास हेतु कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर
माने रोल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब सबसे बड़ी बात है कि विद्या, यदि किसी चीज को ज्ञानार्जन करना है तो महत्वपूर्ण होता है बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें ललकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब जिज्ञासा बढ़ाना हमारा कार्य है कि हम ऐसी चीज को लाएंगे जिससे कि वह बच्चे जिज्ञासु हो जाएंगे। जिज्ञासु हो जाएगा तो स्वाभाविक है उस चीज को प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन बच्चों का दायित्व है कि जो चैप्टर या जो पाठ जो है वह कल पढ़ाई होने वाली है, उस घर पर एक बार समग्र उसको अध्ययन करे, और जो भी कठिन वर्ग है या जो भी कठिन शब्द है उसको माने चिन्हित करे, और इसके पश्चात आए और शिक्षकों से उनके बारे में बहुत ही सहज ढंग से उसको पूछे। यदि नहीं आता है तो वह फिर से उसे समझने का प्रयास करे। लेकिन यह जरूर है कि आपको शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा, शिक्षकों के भाव को समझना पड़ेगा, और शिक्षकों के सामने जाकर एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करे, शिक्षक के द्वारा बताए गए भाव को, शिक्षक के द्वारा बताए गए चीजों को अपने अंदर भरने का प्रयास करे। तब जाकर निश्चित तौर पर क्या होगा कि आपके अंदर में जो शिक्षा का वह भाव बढ़ेगा जिसके तहत जो सीबीएसई ने यह जो इन हाउस के माध्यम से जो यह टॉपिक जो रखा है उसका सार्थकता सिद्ध होगा। अब आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंट्रैक्शन, माने होता है आकर्षण। आकर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आकर्षण का मतलब है कि आपके पढ़ाने का जो जरिया है, आपके पढ़ाने का जो भाव है वह आकर्षित है कि नहीं है। बच्चे उसके भाव को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बच्चे उस भाव को ले रहे हैं। यदि बच्चा उस चीज से आकर्षित नहीं होता, बच्चे उस भाव को नहीं पढ़ेंगे, उस भाव को नहीं जानेंगे, तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि वो हमारी जो है वह टीचिंग प्रति उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। इसलिए हमारे पढ़ाने का जो क्रिया है या पढ़ाने का जो कला है उसमें एक आकर्षण होना नितांत जरूरी है। आकर्षण का मतलब होता है कि यदि मान लिया कि कोई टॉपिक है या कोई चीज ऐसा है तो हम ऐसे भाव को रखें, ऐसी चीजों को बताएं, उसके संबंधित ऐसे रोचक बातों को बच्चों के सामने रखे, तो स्वाभाविक है बच्चा उस माध्यम से सीखने का प्रयत्न करेगा, और इसके पश्चात उस बच्चों को उस संबंधित क्रियात्मक कार्य दे। क्रियात्मक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है आपकी शिक्षा को प्रसार करने में। अब होता है मुख्यतः कि वोकैबुलरी टीचिंग, यानी होता है कि प्रत्येक शब्द बिंदु को बच्चों के अंदर में भरना। जैसे आप पढ़ाते हैं और कोई शब्द बिंदु ऐसे होते हैं जो कि बच्चे के अंदर में नहीं भरता है, नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में बच्चा क्या जानेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो शब्द बिंदु बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है या कठिन है उनको अलग से डिफाइन किया जाए, उनको हर एक जगह चिन्हित करते हुए बच्चों को उसके बारे में बताया जाए, तब जाकर हमारी जो है वह टीचिंग का जो माध्यम है वह सुचारू ढंग से आगे बढ़ेगा। अब होता है मटेरियल। मटेरियल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मटेरियल का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी चीज को पढ़ाने जाते हैं और यदि आपके पास समग्र साधन नहीं रहेगा तो क्या पढ़ाएंगे। समग्र साधन है, समग्र साधन के माध्यम से आप किसी भी चीज को सही ढंग से व्याख्यान कर सकते हैं, सही ढंग से बता सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप मटेरियल आपके पास है, यदि कोई ऐसा जो टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, जैसे कहने का मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स में मान लिया कि आपको त्रिभुज पढ़ाना है, ट्रायंगल पढ़ाना है, और उस आकार का विभिन्न चीज होगा, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है समबाहु है, कौन सा विषम बाहु है और कौन समद्विबाहु है। इसी As we talking about today topic, adopting inclusive in teaching and learning process, means that if we are adopting inclusive practices during teaching and learning, means that we motivating all students that are in classroom, कुछ जरूरी है ये इंक्लूसिव अप्लाई करने का क्लासरूम में। जैसे क्या बताया कि इंक्लूसिव टुडे टॉपिक इज अडॉप्टिंग इंक्लूसिव इन लर्निंग एंड टीचिंग, मींस दैट वी शुड टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज एक्टिविटी, ऑल दोज सिलेबस रिगार्ड टू, अगर हम टीचर हैं
आर बैरियर्स। कहने का मतलब क्या कि adopting inclusive teaching learning means that we should to avoid barriers that affect teaching and learning in classroom. Barrier are of different types, अलग-अलग तरह के barriers हो सकते हैं। Cultural barriers, past experience, perceptions, prejudiciary, linguistic barriers। आप अगर inclusive practice classroom में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, मतलब कि आप सब तरह के बच्चे डिफरेंट, कोई फिजिकल डिसेबल है, सबको आप एक साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए एक माहौल बना रहे हैं। So today topic adopting inclusive practices in classroom, I would like to call Deepak sir. Please come here and share some point on your own word about inclusive practice during classroom. What you faces? Thank you, Anand sir, for giving me the opportunity to tell something about the topic, that is inclusive teaching method. I, Deepak Kumar, faculty of Mother Teresa Tandor Senior School, TGT Math. Now I am going to tell something about some inclusive method about teaching. As we all know that we are in 21st century and we all have used our 21st century skill, like we use library, labs in all teaching methods. अभी तक हम लोग पुराने तरीके से पढ़ाते आए हैं, पर अब वो समय आ गया है कि हम लोग अपने नए तरीकों से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें, ना ही सिर्फ थियोरेटिकल वाइज बट प्रैक्टिकल वाइज भी। जैसे कि सपोज किया जाए कि हर एक चीज़ में हम प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और मेन थिंग होता है बच्चों को पढ़ाने का कि बहुत सारे जगहों पर मैंने ये नोट किया है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो ये करना सही है नहीं, आई डोंट नो मस्ट थिंक अबाउट दैट, बट हम लोग को उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिस भाषा में बच्चों को सबसे ज़्यादा चीज़ें समझना है, क्योंकि अंडरस्टैंड होना, समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Some teaching strategies are particularly effective in engaging and supporting learning in a student from a wide range of background. Methods that encourage active and collaborative learning, improve student engagement and learning for all the students, and close the achievement gap between the majority student. The overall effectiveness of this method has been borne out in research nationally. Most recently by a major meta-analysis of hundreds of studies in the proceeding of the National Academy in Science. Overall, जैसे आप लोग साइंस का भी अगर स्टडी करते हैं तो साइंस के बहुत सारे चीज़ों में, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो पहले के समय में हम लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं था, चीज़ें नहीं थी जिससे बच्चों को हम क्या करें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा सकें। बट नाउअडेज हम लोग के पास सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर हम बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल भी पढ़ाएं, अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को भी सिखाएं, तो बच्चों को सीखने में बहुत आसानी होगी और बच्चों में डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम लोग को बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग कि हम लोग को बच्चों के साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहिए, बट वी हैव कनेक्टेड प्रोफेशनली विद द स्टूडेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। ओवरऑल बच्चे हमसे डरे नहीं और वो सारे सवाल हमसे कर पाए जिस चीज में उनको डाउट हो, क्योंकि अगर डाउट बच्चों का रह जाएगा तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बच्चे अपने लाइफ में डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you Deepak sir for giving your opinion. अब मैं आगे एक दो वर्ड और बोलूँगा कि अगर हम क्लासरूम में इंक्लूसिव प्रैक्टिस को अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मीन्स दैट आप अपने स्टूडेंट के एकेडमिक नीड को फुलफिल कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसके पर्सनल और सोशल नीड को फुलफिल कर रहे हैं, फिजिकल और लोकोमोटर नीड्स, आने जाने जो भी कुछ उसके शारीरिक जो भी जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं। Now, I would like to ask Roshan sir to complete today's topic
inclusive practices in teaching and learning. So Roshan sir, please. Thank you, Anand sir, for your wonderful training. Now, with this, you are getting some assignment question. So, limited time is being given to you for completing those assignments. So, try to complete those assignments on time and submit just after this session. And also be refreshed for the next training, which is going to start soon after a few time. Okay? So, I heartily congratulate every one of you for this successful completion of the topic. Thank you and have a nice day.